friends, I welcome you all on my channel, The Opinion Platform. Today I am sitting at School of Arts and Aesthetics, Jawaharlal Nehru University. In this School of Arts and Aesthetics, there is a small gallery of the department itself, in which a wonderful exhibition has been started a few days ago on 29th of January. And this in this gallery, the art exhibition work of Birendra Pani, the artist, are put for the audience. All of you can come and participate, and you can talk to him as well, and you can have different experience of the art world which are otherwise unknown to many. Well, Birendra Pani has done his BFA, Bachelor of Fine Arts, Bachelor of Visual Arts from Shantiniketan, which is one of the foremost art institution, and then Master of Visual Arts from MS University, Baroda. All of us know that Shantiniketan and Baroda, these two universities are very popular in the field of art, literature and culture. I will not take much of your time. I will directly come to talk to the artist Birendra Pani. Sir, I welcome you on my channel, The Opinion Platform, and you have spared very precious time of yours. Many people, audiences are coming to visit the exhibition, his artworks. I have requested him that please give us your precious time for my audience, so that we can get to know what is this art all about. This art is basically centered around Gotipua dance. We'll try to understand directly through him what is Gotipua dance, how his work is related with the Gotipua dance, and what happens in this dance, and why this dance is relevant, why we must know about it. Sir, I welcome you on my channel, The Opinion Platform. Thank you. आप अपने बारे में कुछ बोलिए प्लीज. Means I am Birendra Pani, contemporary visual artist. So that basically I born in Odisha. 1969 I born in Odisha. From childhood, my father is a sculptor. Which district in Odisha, sir? In Bhadrak district. Okay. It's near to Bengal. Because if you know that Ganjam, that is near to Andhra border. In my place it's near to Bengal. Because from childhood we are watching art through our fathers. He was extremely involved in his field, but he was a dream to study in Shantiniketan, but he does not. Achha. So that from when we study in class 6 or 7, we got idea about the Shantiniketan, but it's very abstract way. We don't know what is the visual art. If you study visual art, there is a particularly course or something. So that from childhood we draw generally clay or something, paint or like that. So when I was class 10 and I complete my 11 and 12, I plan I will join in Shantiniketan. I don't want to study in Odisha because Odisha में तो generally ज़्यादा art college है नहीं है. 12th में Shantiniketan After 12th, after 12th, yes. It's 88. My when I was in 16 or 17 years old, तो मैं फिर Shantiniketan चला गया. So then I meet there. Shantiniketan it's a totally, if you heard about Shantiniketan, people thought it's a inside of Calcutta, but not like that. It's towards to Assam. It's a 250 kilometer distance from Kolkata. So people thought it's a like near Victoria Memorial or something like that. In the main heart of Calcutta. Many of that. But my childhood, I just want to little inform because my father already gave the idea about that painting, sculpture, graphic, and that potter painting of Odisha and palm leaf carving of Odisha. Generally, we have all the idea. What is potter painting? Potter painting means the patua painting. I heard about that. This is a potter painting means. Today we know about the Kalighat painting. I think it's a 14th or 15th century. That means generally Puri painting is quite popular. Puri painting means Puri patua. It's called Puri patua. जब लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल के पास वो प्रेयर होता है तो कुछ पेंटिंग उसी टाइम में क्रिएट होता है. इट्स कॉल्ड पॉटर पेंटिंग एंड दैट इज थ्रू अर्थ कलर. हम लोग जैसा आजकल एक्लिक और ऑयल मीडियम यूज करता है वो ऐसा नहीं है. वो जो घर में जो जनरली जो यूज होता है अर्थ कलर, जैसा हल्दी ले लो और कोई रेड कलर ले लो, दूसरा ले लो, वो अर्थ कलर से बनता है. और
और उसको फिर देन दे यूज इन दैट मीन्स वर्शिप पर्पस में बनता था एंड दैट कल्चर फ्रॉम लॉन्ग टाइम, मतलब कब से, जब से जगन्नाथ टेम्पल है उसी टाइम में पूरी पेंटिंग का एक घराना, आज हम पटो पेंटिंग बोलते हैं, आज हम लोग काफी मीन्स पॉपुलर है पटो पेंटिंग इन ओडिशा एंड पाम लीफ पेंटिंग। आई थिंक एवरीबॉडी नो अबाउट पाम लीफ पेंटिंग। पहले हमारा पाम लीफ में सारा जातक बोलते थे, जातक में पहले हम लोग क्या जितना जातक जो बोन होता है हम लिखते हैं, जनरली यूज होता है रिचुअल पर्पस में। देन अनदर वन आर्टिस्ट फ्रॉम लॉन्ग टाइम, आई थिंक रघुनाथ पृष्टि द आर्टिस्ट, उन्होंने पहले वो ड्राइंग काफी सारा ड्राइंग किया है पाम लीफ में। हाँ, रघुनाथ पृष्टि फ्रॉम गंजम। और जितना हमारा मिनिएचर है उड़ीसन पटो पेंटिंग का जो मिनिएचर है, हाँ, बिफोर पटो पेंटिंग पहले पाम लीफ में वो काफी सारा वो लोग डॉक्यूमेंट करते थे। सो स्टोरी मतलब कृष्णा स्टोरी whatever all the means कृष्णास लीला और whatever, पहले राइटिंग के साथ वो पहले ड्रॉ में वो ट्रांसफर किया है रघुनाथ पृष्टि आर्टिस्ट। ए जगन्नाथ दास another one artist in Puri, he is a quite popular means पटुआ means पूरी पेंटिंग आर्टिस्ट। देन दे मेक अदर घराना, तो काफी सारा स्कूल है पटो पेंटिंग का पूरी डिस्ट्रिक्ट में, वो सब चलता था। तो फ्रॉम चाइल्डहुड वी आर वाचिंग दैट पाम लीफ आर्ट और ट्रेडिशनल म्यूरल एंड अनदर द Odisha, particularly Odisha stone carving is highly important. Means in city the Bhubaneswar there is a 200 stone carving temple is there. From childhood we have an idea about Konarak, Puri, Rajarani, Mukteswar. There is a huge number of the temples. We grown up through that way. In my mind, my idea how I become as an artist generally, because artist बनना इतना आसान नहीं, so that we have to study the proper way. So that when I look the Odisha Art College, there is very bad condition. मतलब there is no proper library or whatever. मैं आपको थोड़ा रोकूंगा। Yes. आपने कहा कि आपके फादर भी Yes, आर्टिस्ट he is a बनना sculptor. चाहते थे। हाँ, हाँ। और चाहे वो उनका भी ड्रीम था। स्कल्पटर हैं। हाँ, अभी भी बनना- है, आज भी कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं। लेकिन वैसे वो क्या करते थे? जनरली ही वाज मीन जनरली डेकोरेटिव चीज बनाते थे, बट Okay, नाउ okay. ही इज ए फुल टाइम, ही इज ए Sculptor नाउ artist. इज 84 years माय फादर प्रहलाद पानी, he live in that own village, he make his own museum in Bhadrak district in Odisha, then he make his own studio। आज सुबह से शाम तक उन्होंने स्कल्पचर और पेंटिंग और राइटिंग भी, माय फादर वाज पोएट आल्सो, उन्होंने लिखते थे। तो रेस्ट ऑफ द टाइम जनरली जब टाइम मिलते थे, अभी वो दूसरे काम में बिजी है, बेसिकली ही इज ए आर्टिस्ट, वो सब उनका ड्रीम था। तो एनी हाउ व्हेन वी स्टडी इन शांति निकेतन 90 में आपने बीए हाँ 90 I 88 first going to I was in Shanti Niketan, then I stay there 2-3 years at least to observe what type of art is going there. Then in 90 I joined in Shanti Niketan, 90 to 97 I was there my graduation. But another one thing in Odisha and Bengal and Bihar is very much similar of the landscape. मेरे आर्ट में ज़्यादा कुछ नहीं था, बट मेरा आर्ट में टॉपिक्स था जैसा उड़ीसा लिटरेचर में जितना जैसा फकीर मोहन सेनापति है और देयर इज ए मेनी राइटर्स, उनका स्टोरी का ऊपर में पेंटिंग ज़्यादा से ज़्यादा बनाता था। तो शांति निकेतन में जाने के बाद मुझे पता चला जो एक्चुअली जो आर्ट में एक प्रॉपर फील्ड है, जो व्हेन यू लुक दैट उत्तरायण दैट म्यूजियम, तो ऑल द आर्ट ऑफ द टैगोर, नंदलाल बोस, विनोद बिहारी, रामकिंकर, फिर हमारा एक इंडिविजुअल सर्च शुरू होने लगा जो हम एक आर्टिस्ट है, हमको एक इंडिविजुअली चीज चाहिए। अच्छा, ये बड़े बड़े जब आर्टिस्ट को आपने बड़े देखा बड़े आर्टिस्ट को कि उनका देखा, अपना उनके- एक वो है होल्ड है in the field of the art. मतलब मैं जैसा सोचता हूँ, जैसा हम तो सारे आर्टिस्ट को मतलब देखते यू हैं, वांटेड टू ग्रो योरसेल्फ एज अ बिग नेम, बिग बिग आर्टिस्ट। नेम एक इंडिविजुअल क्वालिटी होना चाहिए। जैसा बिकॉज जैसा Something डॉक्टर में सारे सर्टिफिकेट लेता है, सारे डॉक्टर बन जाता है। हाँ। जनरल आर्टिस्ट में 50 स्टूडेंट पढ़े, इसमें 1-2 कोई आर्टिस्ट बनेंगे, अदरवाइज जनरली वो क्रिएटिव आइडिया ज्यादा टाइम नहीं रहता है, तो स्टूडेंट कुछ आर्टिस्ट छोड़ देता है, इस प्रोफेशन में नहीं रहता है, जनरली नहीं अच्छा। रहता है। यस, जैसे डॉक्टर में सारे लोग डॉक्टर होता है, सारा प्रेस्क्रिप्शन करता है व्हाटएवर, और आर्टिस्ट में सारे आर्टिस्ट पढ़ लेंगे तो आर्टिस्ट बन जाएंगे, ऐसा नहीं है। जैसे सारे डायरेक्टर में पढ़ते हैं सब कुछ महेश भट्ट जैसा डायरेक्टर हो जाता है, ऐसा भी नहीं है ना, और म्यूजिक में भी ऐसा है। तो हमारा फील्ड में एक अलग नेचर चाहिए, अलग पैशन चाहिए आर्ट के लिए। तो मैं शांति निकेतन में क्या जब शांति निकेतन में पढ़ाई किया, मेरे टीचर थे सोमनाथ और, आप सुने होंगे सोमनाथ और इज क्वाइट पॉपुलर, एंड नंदलाल बोसू फ्रॉम बिहार, बट ही लिव्स इन नंदलाल बसु आपके टीचर थे? नहीं, टीचर नहीं थे, माय टीचर बट दीज आर द घराना दे। शांति निकेतन स्कूलिंग में स्कूलिंग का एक पर्टिकुलर घराना है, बिल्कुल। तो वी हैव टू स्टडी इन दैट वे। एक मेथोडोलॉजी है, उसका अलग परंपरा है, उसमें तो जनरली वेडनेसडे को हॉलीडे होता है, बिकॉज दैट इज
क्वाइट ब्राह्मणिज्म जो है टैगोर का ये, तो उनका फिलोसफी अलग है, नेचर को पूजा करना, नेचर के साथ रिलेशनशिप बनाना। तो पहले हम नेचर स्टडी काफ़ी किए हैं शांति निकेतन में, काफ़ी सारा जनरली लैंडस्केप से शुरू करके वेराइटी वे में, बट दैट इज़ वेरी सिमिलर टू ओडिशा लैंडस्केप। जैसा ओडिशा, शांति निकेतन, बंगाल, बिहार, आसाम, हम लैंडस्केप सारा अकेले जनरली सिमिलर होता है। जैसे हम राजस्थान मान ले तो उनका थोड़ा अलग से रहता है, ग्रीनरी कम रहता है, डेजर्ट ज़्यादा है, ड्राई ज़्यादा है। तो मेरा काम ही वो सब था। तो शांति निकेतन बाद में डिसाइड किया जो मेरे टीचर थे जोगेश चौधरी और सुहास राय और बाकी काफ़ी सारा वेल नोन आर्ट हिस्टोरियन लाइक शिव कुमार, ये सब थे। तो उसी टाइम से मेरा हिस्ट्री के ऊपर एक अलग सा एक आइडिया था कि हाउ हिस्टोरिकल कॉन्शियस अबाउट माई आर्ट वर्क। तो पहले मेरा काम था जनरली ट्राइबल लाइफ के ऊपर कुछ दिन काम किया, फिर धीरे धीरे जो चेंज हुआ, जो लैंडस्केप में आया, धीरे धीरे मुझे पता चला कि इंडिविजुअल आइडेंटिटी चाहिए काम करने के लिए। फिर हम लोग मैं शांति निकेतन में जनरली जब फर्स्ट ईयर ज्वाइन किया तो हम लोग को सबको जनरली पेंटिंग, स्कल्पचर, म्यूरल सब कुछ सीखना पड़ता है। फिर आफ्टर थर्ड ईयर में आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए। तो मेरा स्पेशलाइजेशन था प्रिंट मेकिंग, मतलब रिप्रोडक्शन पेंटिंग। जैसा जनरली हम पेंटिंग करता है, एक मैनुअली पेंटिंग करता है, एक ही पेंटिंग बनता है। तो हम जो पढ़ाई किया जो टेक्नोलॉजिकल आर्ट। टेक्नोलॉजिकल आर्ट क्या है, अगर मैं एक प्लेट में एक पेंटिंग किया उसका रिप्रोडक्शन बन सकता है, उसको 100 लोग देख सकता है, तो वो काफ़ी लोग स्प्रेड कर सकता है मेरा आर्ट वर्क। उसके लिए मेरे से ज़्यादा टेक्निक सीखने के लिए इंटरेस्ट हुआ। और मैं उसमें सन्नत कर है मेरा, लालू प्रसाद साहू मेरा टीचर है और निर्मल नंदू दास मेरा टीचर है। उन लोग से मैं और सोमनाथ होड़ भी हम देखा है, काफ़ी सीनियर है। तो वो प्रिंट मेकिंग पढ़ाई किया है, तो ग्राफिक आर्ट करके। तो फिर इसी आइडिया लेके ग्रेजुएशन के बाद फिर वो लोग बोला आई थिंक शांति निकेतन 5-7 years इज एनफ, ऑलरेडी रुक गया था। तो देन दे थॉट यू हैव टू स्टडी बड़ौदा बिकॉज एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा इज क्वाइट पॉपुलर इन वेस्टर्न इंडिया फॉर लर्निंग विजुअल आर्ट्स। देन आई जॉइन विजुअल आर्ट्स एमएस यूनिवर्सिटी बड़ौदा। 97 से 99 मेरा मास्टर्स था। मेरे टीचर गाइड पीडी धूमल एंड बागुड़ी साहब थे, एंड गाइड ज्योति भट्ट साहब थे। ज्योति भट्ट इज क्वाइट वेल नोन आर्टिस्ट। तो बड़ौदा में एक अलग सा चीज़ निकला जो शांति निकेतन में नहीं है। शांति निकेतन में ज़्यादा गुरु शिष्य परंपरा है, यू हैव टू फॉलो द गुरु क्या कर रहे हैं। तो बड़ौदा में एक और सा एक इंडिविजुअल क्वालिटी है, कैसा और आर्ट को और अपना और वेराइटी वे में देखना, डिफरेंट वे में सोचना, वो सब बड़ौदा में मैं सीखा। बड़ौदा में देखने के लिए भी बात जनरली जैसे कैसे प्रोफेशनल आर्टिस्ट बनने के लिए क्या क्या मतलब हम खुद को तैयारी करना पड़ता है, वो सब हम लर्निंग किया। और मेरे टीचर थे और मेरा एक गाइड थे और आर्टिस्ट हमारे साथ काम करते थे, भूपेन खक्कर, क्वाइट वेल नोन आर्टिस्ट इन इंडिया। तो उन्होंने बोले थे मीन्स आप जब उड़ीसा से आए हैं आपके काम में कुछ उड़ीसा का चीज दिखना लगता है। अच्छा, बिकॉज अदरवाइज सम स्टूडेंट मतलब क्लिक दे दिया उन्होंने, क्लिक दिया था क्यों ना, बिकॉज भूपेन खक्कर इज पॉपुलर फॉर द गुजराती कल्चर और गुजराती लैंग्वेज and the latter it's like Buddha's question, discover your within. तो within उन्होंने एक किया था, you have a good skill of drawing in Shanti Niketan, why not use your topics as an Odisha humor or comic or anything related. This was my mind. Rootedness जो theoretically बोलते हैं, वो होना चाहिए। मतलब कोई भी एक इंडिविजुअल कल्चरल रूटेडनेस जैसा बिहार में है आर्टिस्ट हो, हम जैसे बिहार में खाना भी एक अलग टेस्ट होता है, उड़ीसा में खाना भी अलग, थोड़ा चेंज है, बट लैंग्वेज भी थोड़ा चेंज है, जैसा अपना होना चाहिए। उन्होंने मेरा आइडिया था क्योंकि उससे पहले मेरा काफ़ी सारा वेस्टर्न आर्ट में रीड किया, स्टडी मतलब यूरोपियन आर्ट भी स्टडी किया। तो उससे फिर पता चला जितना आर्टिस्ट बड़ा होता है अपना रूट को पकड़ने में और अच्छा होता है। तो सो दैट आई थॉट, एंड बड़ौदा इज क्वाइट स्मॉल प्लेस और छोटा सिटी में 3000-4000 आर्टिस्ट रहता है। तो सो दैट आई हैव टू मूव दिस प्लेस फ्रॉम बड़ौदा टू मुंबई। तो 2099 में मैं पास आउट हुआ। देन 2000 फर्स्ट आई ज्वाइन इन यूनाइटेड टेलीविजन एज ए ड्राइंग एज ए इलस्ट्रेटर। मैं ज्वाइन किया यूटीवी में, नौकरी किया मतलब। हाँ नौकरी किया, दैट इज ओनली 6 months। पर नौकरी करने में मेरा काफ़ी आइडिया हुआ। पहले तो रुकने के लिए एक स्पेस मिला, फिर आर्ट के बारे में जानने के लिए तो एक स्पेस मिला क्योंकि जनरली बॉम्बे, हम लोग ईस्टर्न इंडिया से, जनरली बॉम्बे इतना बड़ा सिटी है तो पहले जाता है तो हमको कॉन्ट्रडिक्शन लगता है, वो सिटी कल्चर अलग है। तो पहले तो उसी टाइम क्या हुआ, एक्चुअली माय फादर इज एज ए जीएम ऑफ नाबार्ड, उपेंद्र नाथ बिस्वाल। उनको वहाँ मतलब जनरली क्वार्टर मिला गांधीवाली में, जिसे 4 BHK
and who has a GMM in NABARD in Bombay. Then I start my journey in Bombay as a freelance artist. मैं पहले ओडिया लड़का है जहाँ इतना कसरत करके वहाँ तक पहुँचा, और वहाँ गैलरी कल्चर तो डिफरेंट है, ऑल आर एलिटिस्ट कल्चर है। जनरली आप आएंगे तो तुरंत गैलरी में घुस नहीं पाएंगे, जनरली मतलब आपको काम को वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो मैं नहीं समझा व्हाई यू आर कॉलिंग कि उड़ीसा में एलिटिस्ट है। हाँ, उड़ीसा में एलिटिस्ट नहीं है, जो गैलरी कल्चर जो लोग आर्ट कलेक्ट करता है, जो आर्ट देखने आता है गैलरी में, वो एक एलिट क्लास का बिलोंग करता है। वो लोग जनरली नॉर्मल क्लास में बिलोंग नहीं करते हैं जनरली, और उनका एक ग्रुप बना रहता है। तो उसी में पहले आप एज एन स्मॉल बॉय मतलब उसके अंदर एंट्री करने में बहुत डिफिकल्ट है। तो सो दैट पहले मैं एक यूनाइटेड टेलीविजन में काम किया, धीरे धीरे पेंटिंग करने लगा। तो वहाँ से पहले मेरा एक शो है ताओ आर्ट गैलरी में हुआ, ट्रिब्यूट टू भूपेन खक्कर एक शो किया, और गैलरी गिल्ड करके गैलरी था जो, हाँ गैलरी गिल्ड ने मुझे हम क्या मतलब मेरा मतलब एवरी मंथ दे पे टू मी, मुझे सर्वाइव के लिए। तो फिर मैं जो काम करने मैं गैलरी में दे देता हूँ, गैलरी सेल करके उनका परसेंटेज के बाद मुझे पैसे देता है, तो उसमें मैं फिर पहले कंटिन्यू करता हूँ। तो दिस इज माई अर्ली फेज ऑफ मीन्स 50,000, देन 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तक मैं वहाँ था। 2000 में मैं बोल रहा हूँ, सेल हुआ था उसी टाइम। आपका पेंटिंग 5 लाख तक में बिक चुका है? नहीं 20 लाख में बिक चुका है मेरा पेंटिंग लंदन में। यस, मेरा शो लंदन जब बाद में हुआ तो, और यूएस में मेरा सोलो हुआ तो बाद में हुआ। तो वो जो फेज था मैं बोल रहा हूँ थोड़ा स्ट्रगलिंग भी था। और बड़ोड़ा में मैं जो प्रिंट मेकिंग किया, प्रिंट मेकिंग उस टाइम में मैं 6-7 साल काम कर चुका हूँ ऑलरेडी। देन मुझे मेरा पेंटिंग करने का और एक दिल था, तो सो दैट मेरा उधर गाइड है बैजू पार्थन और अतुल दुधिया, आज बड़े आर्टिस्ट बॉम्बे में। उन्होंने उनको मैं जितना काम करता था दिखाता था, उन्होंने मुझे गाइडेंस करता था बिकॉज, और गैलरी से अलग अलग बड़े बड़े आर्टिस्ट को भी मिलते थे, जैसा सुधीर पटवर्धन और अलग आर्टिस्ट को। तो फिर मैं धीरे धीरे वहाँ पेंटिंग करने लगा और पेंटिंग मेरा बेचने लगा। धीरे धीरे बॉम्बे में आर्ट कलेक्टर एज एन ओडिया आर्टिस्ट वीरेंद्र पानी तो मेरे काम को धीरे धीरे खरीद करने लगे। लेकिन मेरे काम में टॉपिक्स बॉयड आंसर नहीं था, काम में था जैसे मेट्रो कल्चर लेके, जो मेट्रो में लोग भागते रहता है, मतलब सुबह से शाम तक काम करता है, कोई रात को काम करता है। जनरली मतलब बॉम्बे में डे नाइट लोग काम करते हैं, उनका स्ट्रगलिंग, उनका सफरिंग, उनका जैसा माइंड का मतलब जनरली किस टाइप का होता है, वो सब टॉपिक्स था। वो टॉपिक्स था मेरा मेन गेम एक सीरीज में पेंटिंग बनाया। आई थिंक 100 पेंटिंग्स बनाया विद इन 5-7 ईयर्स एंड ऑलमोस्ट ऑल आर सोल्ड इन बॉम्बे। तो वो सब था। तो फिर 2003-4 में हम लोग, मैं और मेरा वाइफ डॉक्टर राजश्री विश्वाल, आर्ट हिस्ट्री फ्रॉम JNU, इज द फर्स्ट वुमेन आर्ट हिस्टोरियन फ्रॉम ओडिशा। हाँ, बिकॉज ये पढ़ाई में तो कुछ फ्यूचर नहीं है ना, जनरली कोई क्यों पढ़ेंगे ऐसे। भारत में देखिए इतने बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत इन्होंने स्ट्रगल किया, यहाँ तक पहुँचे। इनकी पत्नी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स स्कूल से ही आर्ट हिस्ट्री में इन्होंने पढ़ाई की है। शी इज आर्ट हिस्टोरियन। कितना दर्द है इस स्टेटमेंट में कि भारत जैसे मल्टी कल्चरल, मल्टीलिंगुअल और मल्टी आर्टिस्टिक कंट्री में सर्वाइवल का कोई स्कीम नहीं है, कोई तरीका नहीं है। अगर आप आर्ट करते हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, अगर आप आर्ट हिस्टोरियन जैसा कुछ करते हैं, यही आप कह रहे हैं। हाँ, यस। तो मैं जब 2003 में मेरा 2 में मेरा जनरली शादी हुआ। तो शादी के बाद मैं माय वाइफ वाज स्टडी आर्ट हिस्ट्री फर्स्ट बड़ौदा मास्टर्स, हाँ, स्कूल ऑफ विजुअल आर्ट्स। उन्होंने आर्ट हिस्ट्री किया है इंजीनियरिंग, आफ्टर इंजीनियरिंग के बाद इंजीनियरिंग बाद आर्ट हिस्ट्री ने किया है। कला एक अजीब चीज है। एग्रीकल्चर, शिवाजी ने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, उसमें क्या कल्चर आ गया, बाकी एग्री यार हट गया यार। तो दिस इज इंटरेस्टिंग। और उड़ीसा में कोई आर्ट हिस्टोरियन ही नहीं है, कहीं ऐसा आर्ट हिस्ट्री में पढ़ाई नहीं किया है उसी फील्ड में। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपकी पत्नी आपसे मिलने के बाद एग्रीकल्चरल इंजीनियरिंग में एग्री हटा दिया? नहीं, हमारा फैमिली में सब कुछ आर्टिस्ट थे, कोई आर्ट हिस्टोरियन नहीं थे। अच्छा, बिकॉज हमारा फैमिली में मैं आर्टिस्ट हूँ, मेरा फादर है, मेरा ब्रदर, बाकी मेरा बड़ा भाई भी ऑलमोस्ट कोई आर्ट हिस्टोरियन नहीं थे। और मेरा वाइफ के फैमिली में सारे राइटर है, कोई आर्टिस्ट नहीं थे। तो दिस इज द मिक्स अप आइडिया। और मेरा जो मीन्स फादर इन लॉ है, उनका ड्रीम था हमारा फैमिली में कोई आर्ट हिस्टोरियन बनेगा। तो सो दैट माय फादर इन लॉ का भी एक ड्रीम है, उनका सपोर्ट है। जैसे बॉम्बे में रहने के लिए तो बहुत डिफिकल्ट है ना, उन्होंने पूरा बिल्डिंग दे दिया, आप काम करो, इधर शुरू करो आपका करियर। तो पहले शुरू हुआ। तो उसी में क्या हुआ ना, धीरे धीरे हम मैं बोल रहे थे, मेरा वाइफ और मैं मिलके 2003 में हम लोग आज मीन्स ऑलरेडी 20 ईयर्स बैक, पहले हम गोटीपुआ डांस देखा बॉम्बे में, फर्स्ट टाइम्स देखा है।
तो पहले तो हम लोग अच्छा, गोटी पुआ डांस उड़ीसा का डांस है। उड़ीसा का डांस फॉर्म है, जो हाँ, बॉम्बे डांस में फॉर्म बड़े है। बड़े आप प्रोग्राम हैं- रहते आप हैं। हैं उड़ीसा के, लेकिन इन्होंने पहली बार गोटी पुआ डांस देखा मुंबई में। नहीं, इतने क्राउड के साथ पहले अच्छा, तो बचपन crowd। में देखे थे, लेकिन ओके, इतने ओके। क्राउड के लेकिन साथ मतलब बचपन में आपने उसमें देखा। जाकिर हुसैन, उसमें बड़े बड़े उस्ताद है उसी ओके। फ्लोर में। वो लोग मतलब 15 मिनट क्लाप करने लगे और उन्होंने You बोले mean to say Goti Pua dance in Mumbai as a commercially successful performance? commercial and artistic, because Artistic, हाँ। before Gotipua we have seen so much of Odissi dance. हाँ। Today we called Odissi. It's a 20th century dance form and quite हाँ। popular. हाँ। And Gotipua is popular in 14th century. Hmm. When Chaitanya Mahaprabhu come from Bengal to Puri in Odisha, अच्छा, he promote that culture. हाँ हाँ हाँ। Because before the temple culture there is a all Sakhi dance pratha, like Devadasi. Devadasi to the, because in Konark temple you have seen that Natya Griha, there is all the Devadasi are doing all the dance, you have seen that. And then Devadasi ke time mein, Devadasi ke baad Mahari aaya, Mahari dance. This is also tradition from Puri. So in between Mahari ke baad Gotipua start. That time boy make performance as woman in front of audience. तो एक कृष्णा होते थे, हाँ, दैट इज द कृष्णा द बॉय। तो वो जनरली वो डांस को ज्यादा से ज्यादा 14th सेंचुरी में चैतन्य महाप्रभु ने उनको प्रमोट किया है, गोटीपुआ डांस इन पूरी। उसमें उसी टाइम में काफी थोड़ा हम पॉपुलर लोग हुआ। बिहार बोर्ड में जब पढ़ते थे, एक चैप्टर था चैतन्य महाप्रभु का, तो इमेज ही वही था कि वो पूरा एक कपड़ा जो सैफरन कलर का होता है, एंड अ बॉय, वेरी क्लीन शेव्ड बॉय, हैंडसम बॉय इज डांसिंग, एंड दैट यूज्ड टू बी द इमेज। यही इमेज हम लोग के दिमाग में, चैतन्य महाप्रभु का नाम जब भी आता है हमारे दिमाग में, बचपन वाली फोटो, क्लीन शेप में एक सुंदर सा लड़का, और वो कुछ इंस्ट्रूमेंट लेके ऐसे कृष्ण भक्ति में गाना, जगन्नाथ भक्ति, कृष्ण हाँ, भक्ति, हाँ, वो शौक था। तो बॉम्बे में मुझे जब मैं देखा, मुझे स्ट्राइक हुआ, मैं इतने सारा मतलब टॉपिक्स के बारे में सोच रहा हूँ, एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी सोच रहा हूँ, व्हाई नॉट बॉय डांसर इन माय टॉपिक्स। मैंने सोचा, मैं इंस्पायर हुआ काफी सारा। उस टाइम में एप्रिसिएशन तो वो डांसर्स को मिला था, और पहले से डांसर को मैं जानता था, ठीक है, बट इसी के ऊपर आज तक हिस्ट्री में काम हुआ नहीं है, ये सब एक्सप्लोर हुआ नहीं है। जनरली ओडिसी इज क्वाइट पॉपुलर, पीपल आर ऑलवेज क्लैपिंग फॉर ओडिसी, इट्स ओके, बट इट्स वेरी सेंसिटिव डांस फॉर्म, बॉय मेकिंग एज वोमेन एज ए परफॉर्मिंग फॉर अ ऑडियंस, ये सब सारी चीज था। तो धीरे धीरे देन उसको 2003-4 में हम देखने के बाद आई हैव सीन अनदर वन फिल्म मेकर संतोष गौ, हाँ, उनका फिल्म देखा अभी बॉय डांसर के ऊपर, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म बना हुआ है। उस टाइम केलुचरण महापात्र आप नाम सुने, उन्होंने भी बॉय डांसर था, बचपन से बॉय डांसर, मतलब लड़का, मतलब बॉय डांसर ही था, बाद में उन्होंने ओडिसी किया। तो धीरे धीरे मैं फिर रघुराजपुर आया, रघुराजपुर में आके धीरे धीरे मैं मिला गुरु मागुणी दास। गुरु मागुणी दास एज ए डांस क्यूरेटर, एज ए मीन्स ये म्यूजिशियन, मर्दल बजाते थे। तो जनरली उनका अखड़ा होता है, जनरली वो बॉय डांसर इंडिविजुअली नहीं रहता है, सिंगल बॉय डांसर मतलब तो सिंगल बॉय, गोटीपुआ में सिंगल बॉय। बहुत चैतन्य महाप्रभु ने क्या काफी सारा आखड़ा बना हुआ है पूरी टेम्पल के साइड में, विलेज में। वो आखड़ा में वो लोग एक ही साथ रहता है, तो एक साथ रहता है, और फ्रॉम एज ऑफ द 5 टू एज ऑफ द 6 to 18 वो लोग डांस परफॉर्म करता है। और उसी टाइम में पहले वो लोग योगा प्रैक्टिस करता है, बॉडी में तेल मालिश करके बॉडी को कैसा बेंड करना, वो सब कुछ एक के बाई एक कम्युनिटी बेस्ड आ गया। जनरली मैं जो पेंटिंग करता था, मैं इंडिविजुअली पेंटिंग करता था, और मेरा वाइफ का टॉपिक था जनरली मीन्स वो, बिकॉज माई वाइफ वाज वर्किंग इन प्रधान से इंडिया में वन ऑफ द बिग ग्रास रूटेड एनजीओ प्रधान, वो लोग कम्युनिटी बेस्ड आर्ट करता है, कम्युनिटी बेस्ड प्रोजेक्ट करता है। तो मेरा अंदर आया ये जो डांस फॉर्म है कम्युनिटी बेस्ड डांस फॉर्म है, तो ये डांस फॉर्म को कैसा मेरे काम के अंदर लाने के लिए मैं कोशिश किया। तो पहले हम दोनों रघुराजपुर गए, पुरी गए, बार एवरी ईयर वी टुक द डॉक्यूमेंट, वी टुक 100 ऑफ द फोटो, 500,000 फोटो लिया है। फिर उसमें मैं थोड़ा धीरे धीरे काम करने लगा, उसको अंदर जाने लगा, उनका स्टोरी क्या है, उसका बिहाइंड में क्या क्या रहस्य छुपा हुआ है, और कैसा वो लोग लाइव क्या है, उनका स्ट्रगलिंग क्या है, आफ्टर 18 के बाद वो लोग क्या करता है, वो सब धीरे धीरे मैं रिसर्च करने लगे। तो फिर मैं क्या, पहले मेरा शो 2007 में केजी सूर्यम सर ने ओपन किए है बड़ौदा में। तो उससे पहले मैं एक शो किया रिस्क करके, रिस्क द डबल एज ऑफ सोसाइटी, जहाँ मेरा ब्लेड का सारे काम किए। आई मेड 100 पेंटिंग्स। ये इस वीडियो में आपको
अभी डबल एज्ड जो पेंटिंग बोल रहे हैं अभी आपको दिख रहा होगा। आप हाँ आपको इसको- दिखाएंगे, हाँ इसको हम दिखाएंगे। तो डबल एज में क्या था, मैं जितने सारा रघुराजपुर में उनका योगिक पोस्टर को फोटो लिया है, फोटोग्राफ्स किया है, उसको फिर ड्राइंग करके मैं पेंटिंग में ट्रांसफर किया है। ऑल द बॉय डांसर आर डूइंग योगा, डिफरेंट टाइप ऑफ योगा। तो उन्होंने मैं काफ़ी कुछ पेंटिंग, सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाया है योगा का ऊपर, बॉय डांसर। उसके बाद मेरा स्ट्राइक हुआ 2000, वो दैट शो हुआ 2006 गैलरी एक्सप्रेस इन न्यू दिल्ली, उन्होंने किया था। 2007 में मैं थोड़ा और माइक्रो उनका जो कल्चरल, जो उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है उनका लाइव के ऊपर में काम करने लगा। तो ये जो बॉय डांसर शो अभी जेएनयू में चल रहा है, पहले 2007 में मेरा जो एग्जीबिशन में परफॉर्मेंस भी आए थे और फिल्म भी था, मेरा ड्राइंग, पेंटिंग सारे कुछ लगा था मेरा एग्जीबिशन में। वो बॉय डांसर शो था मेरा बड़ौदा में था, मेसोसिटी गैलरी में, और गैलरी एक्सप्रेस न्यू दिल्ली में ही था। ये शो था, दिस वॉज माई माइंड। और उसी शो में मैं क्या कर लिया था, वो शो इतना अच्छे लगा, मतलब इतना मुझे भी अच्छा लगा। एक पहले एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी क्रिएट हुआ वो पेंटिंग ग्रुप शो में, पेंटिंग एग्जीबिशन में। तो फिर धीरे धीरे मैं काम करने लगा। उसके बाद मेरा तो काफ़ी चेंज हो गया, अलग अलग टॉपिक्स में आया, काम किया है। तो व्हेन वी मीट उर्मिमाला मैडम, डीन ऑफ स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड एस्थेटिक्स जेएनयू, उन्होंने बोला पानी ऐसा तो पहचानते। तो मेरा एक ड्रीम था, बिकॉज माई वाइफ स्टडीड हियर, फिर एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक, ऑलमोस्ट 10 and 15 years वी आर इन जेएनयू। महानदी हॉस्टल में हम काफ़ी रुक चुका है। मेरा आइडिया था कैसे मैं एक दिन एक टाइम आएगा, मेरा भी एग्जीबिशन लगेगा, लेकिन मैं कुछ कोशिश नहीं किया था। तो उर्मिमाला मैडम मिले, तो फिर बोले पानी ऐसे एक एग्जीबिशन हो सकता है बॉय डांसर को, बिकॉज काफ़ी सारा स्टूडेंट रिसर्च कर रहा है इसी काम के ऊपर। एक स्टूडेंट पीएचडी कर चुका है तो बॉय डांसर्स के ऊपर। देन फिर मैं आई टॉक टू सारल लोयन मैडम, उन्होंने जो आज आएंगे, आज डिस्कशन है। आपको बिहार में भी एक तरीके से बॉय डांसर गोटीपुआ जैसा तो नहीं कहेंगे, लेकिन बॉय डांसर बिहार में भी होता है, जिसे आपको कुछ आइडिया है? मेरा आइडिया है, नॉट ओनली बिहार, वो बेसिकली साउथ से केरला, अब तक केरला, कर्नाटका और तमिल, जो साउथ का एक कल्चर है बिहार तक है, उसमें काफ़ी सारा, मतलब उससे ओल्ड डांस फॉर्म है, लड़का लड़की बन के डांस करता है। मतलब इतना डिटेल पता नहीं है, बट थोड़ा बहुत आइडिया है। आसाम में है, बंगाल में भी है, बिहार में भी बहुत ही पॉपुलर है, जिसको बोलते हैं लौंडा नाच। अच्छा। जिस पर जेएनयू के ही प्रोफेसर डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जी सर पढ़ाते हैं, और वो इस पे बिहार का जब कल्चरल डिस्कशंस होता है तो उसमें लौंडा नाच होता है, लौंडा नाच पे चर्चा होती है। लौंडा मतलब लड़का, लौंडा मतलब लड़का, नाच मतलब वही बॉय डांसर, बिल्कुल मतलब एग्जैक्ट वुमेन बन के परफॉर्म करते हैं, वुमेन। हाँ, विमेन भी बन जाते हैं वो लोग, हाँ विमेन बन के परफॉर्म करते हैं। इनफैक्ट अगर हम डांस के इंडियन उसमें भी फिल्म स्टडीज फोक होगा, आई थिंक फोक होगा। हाँ, फोक में ये फोक से थोड़ा ट्रेडिशनल हुआ है, बिकॉज ये वार्षिक में लगता है ना, जगन्नाथ लॉर्ड साइड, इसमें वार्षिक ज्यादा आ गया। फर्क ये है कि आपके यहाँ अगर गोटीपुआ डांस में ये इसमें रिलीजियस पर्पस टैबू नहीं होगा, टैबू भी नहीं। गोटीपुआ डांस में पहले तो रिलीजियस पर्पस में था, लॉर्ड जगन्नाथ टेम्पल टैबू के था पास। कि लड़का लड़की बन रहा है तो उसका कोई मजाक उड़ाता है बाद में। हाँ मजाक उड़ाता है, बहुत सारे लोग मजाक उड़ाता है। मजाक उड़ाता हाँ है? मजाक उड़ाता है, लोग सोचता है, कोई सोचता है हिंजड़ा है। हाँ बिकॉज क्या होता है जनरली, लोग बचपन से ये लोग योगा प्रैक्टिस करता है, और उनका वुमेन बनते बनते उनका बिहेवियर थोड़ा वुमेन जैसा रहता है, लड़की फेमिनाइन जैसा रहता है। पर जनरली वो लोग होमो नहीं है और हिंजड़ा भी नहीं है। बट ये चीज जब आफ्टर 18 बाहर आते हैं, इसका इन्फ्लुएंस रहता है, बिकॉज जनरली दे टॉक, तो इसका हाई एंड ऐसा करना, बट अगर उसका बात बोलने में तरीका अलग होता है। तो मजाक तो बहुत लोग उड़ाता है, जनरली मैं सुना हूँ जैसा ये। और बाकी इट्स ए डिफरेंट, मतलब थोड़ा ट्रेडिशनल है, मेरे कंपैरेटिवली फोक, मतलब रिलीजन के कारण थोड़ा सा उनको कम क्रिटिसिज्म किया जाता होगा। हाँ, क्योंकि रिलीजन, हाँ है ना, कम किया जाता है, क्योंकि आप जब आपने खोल के बोल दिया तो उनको लोग, बहुत सारे लोग ओडिसी में आ जाता है ना, होमो हाँ। और यूनक और हिजड़ा ये सब हाँ, ऐसा बोल देते मजाक उड़ाते हैं। हाँ, लेकिन क्योंकि वो रिलीजियस परफॉर्मेंस है कहीं ना कहीं, थोड़ा कम होता है, बट यही लोग फिर ओडिसी डांस में आ जाते हैं। ओके, बिकॉज आफ्टर गोटीपुआ, मतलब ऑलमोस्ट 50% आर्टिस्ट ओडिसी डांसर में इजी होता है। ओडिसी में जो डांस मुद्रा है, जो गोटीपुआ सीखा है ओडिसी, वो आराम से कर लेंगे। ओके, बिकॉज मुद्रा वेरी सिमिलर होता है। हाँ, तो ना उनका बॉडी का काफी बचपन से फ्लेक्सिबल रहता है, जो गोटीपुआ डांस का। और ओडिसी में थोड़ा अलग है, मतलब उनका जेस्चर आ जाता है, उनका अभिनय आ जाता है, और काफी मेच्योर्ड हो जाता है, अलग रह जाता है। तो धीरे धीरे चेंज होता है। गोटीपुआ डांस जो करते हैं आर्टिस्ट, तो
ये कितना पॉपुलर और सरवाइव कैसे करते हैं, उनका सोर्स ऑफ इनकम की क्या हाल है? जनरली गोटीपुआ डांस आज के टाइम पे लोग करने के लिए तैयारी नहीं है, जो ना उसका कैरियर है नहीं। और गवर्नमेंट से आज तो कोई स्टाइपेंड नहीं है, कुछ सपोर्ट नहीं है। मुझे लगता है जैसा ओडिसी के लिए है, ओडिसी के लिए डेफिनेटली है, मतलब कुछ स्टाइपेंड है, कोई रिसर्च कर रहा है। बट आजकल गोटीपुआ डांस बनने के लिए आजकल जनरली नहीं चाहते, क्यों ना इसका कोई फ्यूचर नहीं है। उसके लिए मेरे काम में जो रिस्क लिखा हुआ है, उनका लाइफ का रिस्क है। वो लोग गोटीपुआ जो डांस करता है, एक सर्टन एज के बाद काफ़ी रिस्क है, और इसका फ्यूचर क्या है, तो एक एज के बाद तो आप डांस नहीं कर पाएंगे। तो और सब कोई ओडिसी डांस में रहेंगे तो काफ़ी डिफिकल्ट है, मतलब रहना भी एज ए डांसर को। वो लोग काफ़ी मिडिल क्लास बिलोंग करता है, तो सर्वाइवल की चीज़ आ जाता है। तो मतलब वो एक्सटिंक्ट हो रहा है। हाँ, धीरे धीरे कम हो रहा है, प्रमोट कम हो रहा है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा पीपल आर प्रमोटिंग ओडिसी डांस। तो गोटीपुआ डांस जो लोग करते हैं, अब मुझे ये समझना है, गोटीपुआ डांस जब परफॉर्मेंस है, परफॉर्मर है, उसको हायर करते हैं लोग, दूसरे गांव के लोग इनवाइट करते हैं, क्या होता है? गांव के लोग, ये लोग क्या चंदन ओकेजन होता है? जनरली चंदन यात्रा में करते हैं, चंदन यात्रा। झूलन में करता है। चंदन यात्रा क्या है? जैसा वो कृष्ण का बर्थडे होता है, ओके। हाँ, तो उसमें कृष्ण को झुलाएंगे। ओके, तो हाँ, कृष्ण के झुलाने के सामने गोटीपुआ डांस का परफॉर्म होगा। ओके। तो उसका स्टोरी बेस्ड कृष्ण का स्टोरी का होगा। और झूलन यात्रा है, कुछ जैसा कृष्ण भगवान का झूलाते हैं, इस टाइम होता है जो रिचुअल चीज़ है। और रथ यात्रा में जो रथ के सामने भी डांस का वो सब होता है। लेकिन बीच बीच में मैं सुना गोटीपुआ डांस कोई सोशल टॉपिक्स के ऊपर भी होता है, सोशल इशू लेके, जैसा एजुकेशन है कोई वही, और जैसा वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, अलग अलग चीज़ के ऊपर अब धीरे धीरे चेंज हुआ है। और जनरली वो ट्रेडिशनली यूज करते हैं गोटीपुआ डांस। जैसे आजकल ओडिसी कोई की सीजन कंटेम्परेरी, कोई सीजन फिक्स है कि सीजन पर्टिकुलर मतलब- सीजन में होगा? जैसा सीजन मतलब वो जितना मौसम के हिसाब से, वेदर के हिसाब से? वेदर के हिसाब से तो नहीं है। जनरली वो पूजा तिथि के अनुसार, जैसा रथ यात्रा मान लो, हाँ, हाँ, जैसे अप्रैल में आता है। और कोई होली मान लो, होली में, होली इज द पॉपुलर फेस्टिवल, होली में होता है। तो इसी से और रिचुअल चीज में होता है। मतलब एक रिचुअल टैग भी बहुत परमानेंट नहीं है कि उसके आधार पे ये कल्चर सर्वाइव करेगा या धीरे धीरे ये तो मतलब ऑलमोस्ट टू डाइंग पेज हो रहा है। बट अभी थोड़ा रिवाइव हो रहा है, रिसेंट डेज में थोड़ा हो रहा है, बिकॉज ये वन डे प्रैक्टिस नहीं है जिस बच्चे अच्छा, में। गोटीपुआ डांस आपने बोला कि गोटी मतलब सिंगल, पुआ मतलब लड़का, बॉय। तो गोटीपुआ डांस आप बोल रहे हैं कि सिंगल बॉय का डांस? पहले सिंगल बॉय था, धीरे धीरे ग्रुप होने लगे। जैसा एक कृष्णा होंगे, बाकी सखी होंगे कि राधा होंगे, इसके लिए ग्रुप चाहिए। हाँ, तो क्योंकि वो आपने कहा कि वो कम्युनिटी लाइफ हो जाता है, वही मुझे लगा कि गोटीपुआ नाम है सिंगल बॉय डांस। पहले शुरू था, अर्ली पेज में एक ही परफॉर्मेंस थे, सिंगल बॉय, बाकी वी ऑल आर द ऑडियंस। तो धीरे धीरे टॉपिक्स जब चेंज हुए, जैसा कृष्ण का रास लीला है और बक्कासुर मदिनी है, और दे आर डूइंग ऑल द 10 अवतार नो, तो उसमें धीरे धीरे ग्रुप आने लगे। तो धीरे धीरे वो चेंज हो गया, बिकॉज एवरी मतलब 10-12 ईयर से चेंज हो जाता है, उसका फॉर्म चेंज हो जाता है, गुरु अलग आ जाता है, साउंड अलग आ जाता है, म्यूजिक का जो कंपोजिशन अलग हो जाता है, धीरे धीरे चेंज होता है। नाउ आई थिंक एक 8-10 आंकड़ा है। आई थिंक पूरी डिस्ट्रिक्ट में अभी 10 ग्रुप होगा, टोटल 10 ग्रुप होगा। अलग अलग आंकड़ा बोलता है, अलग अलग गाँव में। तो वो लोग उड़ीसा में परफॉर्म करता है, और इंडिया में दिल्ली में आके परफॉर्म करता है, और बाहर भी अभी। तो बेसिकली देखिए, आप तो यू आर नॉट अ गोटीपुआ डांसर, यू आर नॉट अ गोटीपुआ परफॉर्मर, जस्ट बिकॉज यू कम, आई एम पेंटर। जस्ट बिकॉज यू कम फ्रॉम उड़ीसा। तो आपने ये सोचा कि मेरा कल्चरल रूट कहाँ पे है, और इन योर पेंटिंग यू चोज गोटीपुआ डांस एज ए थीम। एज ए थीम। एंड अनदर थिंग, हमारे जनरली सो कॉल्ड जो विजुअल आर्ट का जो हिस्ट्री है, हिस्ट्री ऑफ विजुअल आर्ट में आज तक गोटीपुआ का पेंटिंग कोई नहीं किया है, कोई नहीं। मैं पहले आर्टिस्ट हूँ जो एक डांस फॉर्म को लेके उड़ीसी में कोई स्केच किया ये होगा। बहुत दिलचस्प बात, बारीक बात बोले, मैं थोड़ा सा सर रोक के एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, इजी बना दे रहा हूँ। सर ये कह रहे हैं कि डांस फॉर्म है, तो डांस फॉर्म जब हमें कोई बताया जाता है तो कंटेम्पररी आर्ट में ट्रांसलेशन करना है, ट्रांसफर करना है। मैं पहले आर्टिस्ट हूँ, बिल्कुल ऐसा काम। तो हम लोग क्या समझते हैं कि डांस है तो उसको डांस को सीधे स्टेज पे देखा जाएगा, लेकिन सर ने पहली बार ये सोचा कि नहीं, जो परफॉर्मेंसेज हैं विजुअल आर्ट, उसको विजुअल में भी, उसको पेंटिंग में भी आ सकता है, इसको एग्जीबिशन भी हो सकता है, एग्जीबिशन भी हो सकता है। तो सो दैट मेरा पेंटिंग भी है, ड्राइंग भी है, फोटोग्राफी है, फिल्म है, जितना सारा मीडियम है। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी इलस्ट्रेशन और पेंटिंग के कारण गोटीपुआ डांस पे चर्चा हो रही है, जहां जहां होगा
जैसे मैं अभी तक किसी गोटीपुआ परफॉर्मेंस से नहीं मिला हूँ। मैं जानता था गोटीपुआ डांस किताबों में पढ़ा है मैंने, इस स्कूल में भी पढ़ा है, चर्चा हो, लेकिन इस तरीके से हमने कभी गोटीपुआ डांस कि वो मर रहा है, खत्म होने वाला है, धीरे धीरे मर्ज हो रहा है, हाँ, इरेज हो रहा है, हाँ, कि हिस्ट्री से वो खत्म हो रहा है, कैसे वो एक ही कल्चरल परफॉर्मेंस था, कम्युनिटेरियन परफॉर्मेंस था, खत्म हो रहा है भारत का एक कल्चर। सर ने उसको क्वेश्चन को रीइंफोर्स किया इन्होंने। और कभी और हम लोग एक न्यू बीज इंडिया करके एक आर्काइव किया है, मैं और मेरा वाइफ मिलके, दैट इज नॉन प्रॉफिटेबल मीन्स कल्चरल इनिशिएटिव। हम लोग क्या करते हैं, काफ़ी सारा डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट किया है लास्ट 33 ईयर्स में। तो ऐसा हम लोग क्या, जो जनरली स्लाइड शो एंड टॉक शांति निकेतन में, बड़ौदा में, BHU में जितना आर्ट इंस्टीट्यूशन है उसमें हम लोग शो करता है। जैसा JNU में आज हुआ है, इससे पहले BHU में हुआ है, इससे पहले शांति निकेतन में हुआ है। नॉट ओनली बट गोटीपुआ, अदर टॉपिक्स लेके। गोटीपुआ डांस परफॉर्मेंस का पेंटिंग्स बेचा है अभी तक आपने? जनरली जब बॉय डांसर का सीरीज ज्यादा नहीं बेचा, रिस्क का मेरा ऑलमोस्ट ऑल सोल्ड। जब वो फोकस हो जाता है तो बायर लोग लेने के लिए तैयारी नहीं है। मतलब एक आपका मुख जब मैं पेंटिंग करूंगा, वो लोग सोचेंगे आपका पेंटिंग क्यों लेंगे, तो दूसरा पोर्ट्रेट है। जब इसको एब्स्ट्रैक्ट कर देंगे, पीपल वांट टू टेक देयर। तो उसमें क्या, मैं एक इश्यू के बारे में बोल रहा हूँ, एक उनका एक अलग सा कैरेक्टर के बारे में डिस्कशन कर रहा हूँ। पर कुछ तो लेते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ बाहर इंटरनेशनल बायर है, दे वांट टू टेक द गोटीपुआ जनरली, बट इंडिया में तो कम है, जनरली ज्यादा बाहर ज्यादा ही है, और इंडिया में लेते हैं बट इतना ये नहीं है। मतलब कोई जब हम जनरली पेंटिंग सोल्ड होता है, घर में ब्यूटीफुल देखने मांगता है। तो ब्लेड तो कैसा ब्यूटीफुल लगे, ब्लेड तो एक स्टोरी के ऊपर आधारित हो गया ना, और लाइफ का हम आपको इस इंटरव्यू के खत्म होने के बाद 5 मिनट का सर के साथ गैलरी में चलेंगे। सर का गैलरी में इनका पेंटिंग को एक्सप्लेन करता हुआ वीडियो भी लगाएंगे इसके साथ, जरूर देखिएगा, अंत तक देखिएगा। हाँ, ओके, हाँ ठीक है। एनी डेफिनेटली गैलरी जाएंगे, देखेंगे। तो जनरली मेरा जब सेल के बात आता है, तो मेरा होल इंटेंशन सेल नहीं था। मेरा होल इंटेंशन था ये एरिया को कैसे एक्सप्लोर करना, और मैं खुद को एक्सप्लोर कर रहा हूँ। मैं एज एन ओडिया इनसाइडर और आउटसाइडर, और हमारा जो विजुअल आर्ट का एक फ्रेम है, इसी टाइप का ऑडियंस आता है। और मेरा एग्जीबिशन में मैं नया टाइप ऑफ ऑडियंस क्रिएट करता हूँ, जो लोग कभी गोटीपुआ कभी देखा नहीं है, कभी सुना नहीं है, तो वो देख सकता है, क्यूरियोसिटी हो गया। ऐसा दिल्ली में मेरा काम है, जैसा उसको नेशनली एक इंटरनेशनली एक डांस फॉर्म को मेरा आर्ट के माध्यम में उसको कैप्चर करना, एक हिस्ट्री को कैप्चर करना। बिकॉज एज एन माई वाइफ इज हिस्टोरियन, वी ऑलवेज क्रिटिक्स आवरसेल्फ। हम दोनों को क्रिटिक्स करता है, कैसा हम थियोरिटिकली एंगेज हो सकता है, उसको और कितना डॉक्यूमेंट अच्छे से कर सकता है। तो दिस वाज द आइडिया। और मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लगता है जनरली कोई भी एग्जीबिशन एजुकेशनल, जनरली हम लोग, मेरे ऑलरेडी आई हैव डन 400 एग्जीबिशन एंड 10 और 15 1600 इंडिया एंड अब्रॉड। काफ़ी सारा कंट्री में मैं जा चुका हूँ। मेरा 1600 न्यूयॉर्क में हुआ है, मेरा और अभी USA में था, पेनराज शिवाज इन USA। आई वॉज ऑल्सो विथ हर, आई मेड ए सेवरल पेंटिंग्स, आई हैव डन माई, दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक। तब और मुझे सबसे अच्छा लगता है जब एजुकेशन इंस्टीट्यूशन प्लेस में बात होता है, तो मुझे भी काफ़ी इंस्पिरेशन मिलता है। स्टूडेंट आर इंटरेस्ट टू लर्न दिस थिंग्स, स्टूडेंट आर ऑल्सो वांट टू नो दिस थिंग, ये मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट है। इसके लिए मैं रियली आई एम हैप्पी इन डूइंग सो इन एग्जीबिशन इन JNU विथ द स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म। फ्रेंड्स अब हम चल रहे हैं सर के साथ गैलरी में, और वो गैलरी का भी आपको मैं दिखाता हूँ। प्लीज कम। साथियों, इंटरव्यू में आपने सुना कि वीरेंद्र पानी सर का आर्ट वर्क क्या है। देखिए सामने में प्रैक्टिकल के माध्यम से कि क्या है, और मैडम है जो डॉक्टर राजश्री बिस्वल हैं, आर्ट हिस्टोरियन, जो सर बार बार जिक्र कर रहे थे कि मेरी वाइफ आर्ट हिस्टोरियन है, इसी स्कूल की स्टूडेंट रही हैं, PhD किया है, PDF किया है। इनका भी बहुत ही आर्ट फील्ड में काम है, विजुअल आर्ट में नई तरीके से देखती हैं। ये लोग आपस में चर्चा करते हैं, एक दूसरे का क्रिटिसिज्म करते हैं, और बात करते हैं कि कैसे चीज़ों को इम्प्रूव किया जाए। हम देखेंगे कि वीरेंद्र पानी सर का काम क्या है। हम आज इस गैलरी में है, आप देख सकते हैं, यह JNU का गैलरी है। हम एक एक करके सर हमें आर्ट वर्क अपना दिखाएंगे, आप गौर से सुनिए और समझिए। हाँ सर, क्या है ये बताइए।
जनरली ये जो काम है, पहले मेरा जो रिस्क एग्जीबिशन था उसमें काफ़ी सारा उनका यौगिक पोस्टर को मैं कैप्चर किया था और उससे मैं पेंटिंग किया था। बट ये जो है ज़्यादा से ज़्यादा उनका जो फेशियल एक्सप्रेशन है, उनका जो कैरेक्टर है, तो ये सारा चीज़ को मैं धीरे से और एक्सप्रेशन को इसी काम में मैं दिखाता हूँ। तो ये कैमरे से खींचा हुआ है या कैमरा से खींचा हुआ है, कैमरे के बाद में पेंट हुआ है। इसको मिक्स मीडिया बोलते हैं जनरली, मिक्स मीडिया इंस्टॉलेशन। और जो ब्लेड, मेरा हमेशा काम में ब्लेड आ जाता है। और इसी को मैं फ्रेम बनाया, आयरन में मैं फ्रेम बनाया है जो ब्लेड का, हाँ ब्लेड का शेप है, करेक्ट। देख रहा है। और उसमें सब डिको पेंट में पेंट हुआ है और उसका जंग लग गया है और उसका एक अलग सा एक कैरेक्टर किया है, जैसा ओल्ड पुराना आर्ट वर्क रहता है। तो इन बिटवीन आई जस्ट डिस्प्ले माय पेंटिंग्स हियर। These are the portraits और the different expression आप बोल सकते हैं। ब्लेड आपने क्यों चुना? ब्लेड क्यों आपने फ्रेम के लिए लिया? जनरली मेरे काम में जैसा मैं यूज किया, जैसा ब्लेड द फॉर्म एज ए मेटाफॉर। हाँ। तो और मेरा और इसके साथ उनके साथ जो बॉय डांसर जिस लोग हैं उनके लाइफ के साथ जितना काफ़ी, जैसा मैं दिखाता हूँ उनको एक सर्टेन एज के बाद काफ़ी रिस्क है, हाउ टू मीन्स दे बिकम ए डांसर और उसको लाइफ में कंटिन्यू करना वो काफ़ी डिफिकल्ट होता है। तो वो जो रिस्क चीज़ का मैं उसको ब्लेड में वो सिंबलिकली दिखा हुआ है, एज ए फ्रेम, एज ए मेटाफोर और ब्लेड इसमें दिखा है। तो एक सीरीज ऑफ आर्ट वर्क है, आप देख रहे हैं। आप कह रहे थे कि आप पेंटर हैं, आगे आगे चलते हैं। आपका पेंटिंग पेंटर मतलब जब शांतिनिकेतन में हम पढ़ाई करते हैं, काफ़ी सारा पेंटिंग और अलग अलग मीडियम को हम प्रैक्टिस करते हैं। बट व्हेन आई वाज ए स्टूडेंट ऑफ प्रिंट मेकिंग, मेरे से हमेशा ब्रेन में था कैसा मैं फोटोग्राफी को मेरा पेंटिंग में काम में लगाएंगे। दीज आर द मिक्स मीडिया आर्ट वर्क्स, फोटोग्राफी विद पेंटिंग और मिक्स मीडिया and symbolically I think Rashid can little explain। हाँ मैम, you want to say something? You are saying कुछ कह रहे? हाँ, जो सिंबल एंड मेटाफोर के बारे में बोल रहे थे, तो these are also kind of soft target or maybe the vulnerable condition. The red line is showing some kind of vulnerable condition which is actually inherent within the art practice, in the sense कि after 18 years the muscle becomes stiff and they actually cannot physically perform the acrobatic postures and some of the bandhas also, bandha or the yogic postures, and at the same time the difficult socio-psychological condition also. So that हाथ में hold and talk। okay. So that because every time they had to be in a state of a girl or a woman despite being they are male. So of course this is a kind of performance, some kind of performativity is always there, but there might be also some kind of impressions in the psychology, so and perception by the society. So being a Gotipo dancer, of course it has changed in due course of time, because with the huge amount of social media has really made some kind of positive impact also in understanding the practice, and also they are able to communicate also. Previously, before 2000 to 2005, actually there was no such proliferation of media, so they are kind of insulated. So now they're in a better state to express themselves, to communicate. So also to influence the perception of the society, being a boy dancer dancing in the form of girls. So yeah, these are the different psychological conditions. And these are the photographs. Or as a student, when I was student in Baroda and Shantiniketan, मेरा पेंटिंग करने के लिए एक डिजायर था। दिस इज माय पेंटिंग और दिस सीरीज आई मेड इन 2003-4 इन बॉम्बे। आई हैव डन माय फर्स्ट शो इन गैलेरिया स्पेस 2006। तो मैं पेंटिंग के टाइम में उसको आपको लगेगा वो डिजिटल प्रिंट, बट ये डिजिटल प्रिंट नहीं है। उस टाइम में डिजिटली टेक्नोलॉजी को मैं काम में लगाया है। कैसे मतलब जनरली हम पेंटिंग करते हैं काफ़ी फ्रीली, जैसा ये पेंटिंग है तो डिजिटलाइज नहीं है, नॉर्मल पेंटिंग होता है, तो सिंपल पेंटिंग्स जो बॉय डांसर का है। बट उसमें डिजिटल इफेक्ट जो है तो मैं कॉन्शियसली एक डिजिटल इफेक्ट क्रिएट किया है मेरे काम पे, जैसा न्यू टेक्नोलॉजी और न्यू मेथोडोलॉजी और उस टाइम में ग्लोबल कंडीशन के साथ टेक्नोलॉजी के साथ कैसे धीरे धीरे चेंज हो जाता है। तो ये सारा जो
सीरीज ऑफ में पोर्ट्रेट्स पेंटिंग किया है, पर ये पेंटिंग ऑन कैनवास, एक्रिलिक और कैनवास, हैंड पेंट है। और हैंड पेंट में मैनुअली एक अलग से एक इन्वॉल्वमेंट रहता है जनरली। और पेंटिंग में जनरली मैं बोल रहा था पहले सिंगल बॉय धीरे धीरे ग्रुप होने लगे। तो जनरली मैं जो पेंटिंग करता था मेरे काम में इंडिविजुअली आर्ट प्रैक्टिस में सिंगल पेंटिंग करता था, बट इसी डांस फॉर्म में काफ़ी सारा कम्युनिटी बेस्ड डांस फॉर्म है जिसमें काफ़ी सारा बॉयज लोग मिलके डांस फॉर्म को करता है। आप देखेंगे धीरे धीरे आगे ये जो डांस फॉर्म है। और यहाँ मैं दिखा सकता हूँ जो इसी में ड्राइंग में मैं लिखा है, लेफ्ट साइड में ड्राइंग है, इसमें दिखा है इसमें काफ़ी सारा चीज जक्सटापोज किया है। तो एक के ऊपर एक ओवरलैपिंग कर रहा है, कोई मेकअप हो रहा है, कोई जस्ट एक दूसरे को हेल्प कर रहा है, ये ओवरलैपिंग इमेजेस से मैं ड्रॉ किया हूँ। और दीज आर द पेंटिंग्स आई मेड ऑन एक्रिलिक कैनवास, दीज आर द एक्रिलिक कैनवास, दीज आर हैंड पेंट। बट उसमें क्यूरियोसिटी था एक डिजिटल टेक्नोलॉजी को कैसे पेंटिंग में यूज करना, वो भी एक क्यूरियोसिटी था। और एज एन पेंटर मेरा था हाउ टू पेंट, मुझे पेंटिंग करने के लिए जो अलग एक इच्छा है वो भी एक्सप्रेस करने के लिए। तो दिस इज माय आइडिया। उधर भी है जो उस तरफ है जो ग्रुप पेंटिंग पे आप बात कर रहे हैं, आप दिखा, हाँ ग्रुप फोटोग्राफ से यहाँ पे एक्चुअली द मोनुमेंटलाइजिंग द इंडिविजुअल, making them means foregrounding the subjectivity of the Gotiku. You can see the scale also. So it is not only about the identity of the Gotiku dancers, but also highlighting the significance of the dance form. Also, as he was talking about the mediatic influence in relation to the dance form, at the same time, he is also showing the traditional element. So, and always many of the works are framed within the symbol of the blade. So, always talking about the conceptual space of the double-edgedness, tradition and modernity, and the psychological condition within the dancer is boy and girl. And also in terms of the tradition, is I talked about tradition and modernity. So, all different elements and foregrounding their subjectivity. That is the crucial aspect of the big form paintings. हाँ उधर चलते हैं, उस तरफ भी है, उस तरफ आपके बहुत सारे शायद पेंटिंग्स हैं या फोटोज हैं, वो आप बताएंगे। हाँ So these are all series titled Transition and Transformation. Vibhuti Bhushan Chakravarti. Yes. So he is one of the dancers, very important dancer. In Gotiku. मतलब ये जो सामने जो हैं लिपस्टिक लगाते हुए लड़की बने हुए, ये सेम बॉय हैं जो फोटो में है। Exactly. हाँ। So it is talking about the transition and the transformation, because the first photograph is in 2007 and now this is the very recent photograph in 2024. So the kind of transformation has happened within them as a dance practitioner and as an individual, as well as now he is actually a biotech PhD now, Vibhuti Bhushan Chakravarti. So he has made doctorate in biotechnology. Now he is a research scientist, and actually. So the dancer has become research scientist. Yeah, actually, perhaps I think he is one of the most. Means he is the first one to have a PhD, because he has also pointed out very significant aspect, the lack of education within the Gurukul system. Because it was not good during that time, and it has also not been improvised till now. So what he has pointed out, and I also agree completely, like unless until there is the education, good system of education within the Gurukul system, so because their future is in a very uncertain phase, because after 18s, when they are not able to perform, so their most formative period being invested in the dance form. So some of them may go to the field of Odissi dance, but many of them perhaps they will not be able to continue the dance form. So at least if they will have some kind of good education, which also will add to a great extent to their consciousness. Being a Gotiku dancer as a conscious dancer, conscious boy. So that is very crucial in shaping their future life according to him. So yeah. And also there are other dancers, you can see the same transition and transformation series. He is Chandramani Pradhan. So he is now transformed into a sannyasi
as well as a Gotipo dance organizer and Odissi dancer. Oh. So in some way he is continuing. Even Vibhuti Bhushan Champati, he is continuing as a Mardala player. He is a very good Mardala player now. And he is Dushmanta Marana. So Dushmanta Marana is also a very good Odissi dancer now. He had his own Odissi dance school in Bhubaneswar. But why we have been in touch with them? Because they are very conscious. So within their Gurukul system, they are the conscious few who actually could understand their system, the crisis within the system, what need to be done, and also they are very proactively thinking about Gotipo dancer, how it can be continued in future, and they are also inspiring the future generation, although they are in different domains of life at present. And he is Vichitra Kumar. You can see the portrait, it was in 2007 it has been painted. So during that time also there are not many Gotipo dance performers and very few groups were there who were performing the dance. And you can see the portrait being visible to certain extent and invisible to certain extent. So in a way it was talking about the vulnerable condition, the kind of challenges as a dance form they were facing, and also at the same time their subjectivity is being foregrounded, that this is a dance form which need to be continued, which need to be sustained for the future generation. And he is also a Odissi dancer at the moment. And this is what Sir was talking about. Yeah, I can explain. This was the show 2007. This boy dancer, Convergence and Continuum. This show was in Baroda. Then generally this is the first dance program with the audience of the visual artist. I think Baroda is quite popular for artistic place or university. But this is the dance program in generally after the show, after the inauguration. This was the program in Baroda in 2007. This was the performance, and these all are the different. Their bandhas are here. Means they are doing yoga and dance mixed together. These are the different story about all Krishna and doing all the different activities are here. But this is called I'm talking about the groove, how the groove community engagement in dance and how relationship of one and another. These are the dance form I was talking. It was quite unique and it was very significant form of this dance form. This show was also quite popular in Baroda. Then एक शो के बाद वो लोग काफी रिक्वेस्ट किया है नेक्स्ट सेकेंड डे में सेम एग्जीबिशन सेम डांस भी हुआ और एग्जीबिशन के साथ परफॉर्मेंस भी हुआ, वो काफी इम्पोर्टेंट। अच्छा हाँ, इम्पोर्टेंट सवाल ये भी आ गया, आपने ठीक ध्यान दिलाया। ये जो आर्ट एग्जीबिशन ऐसा लगाने के बाद आपके पास इतने लोग होते हैं कि परफॉर्मेंस अगर आपको कोई रिक्वेस्ट करे तो आप अरेंज कर सकते हैं? नेक्स्ट टाइम ना, उसी टाइम में वो लोग आए थे मेरे इस टाइम में, तो ऑलरेडी 2007 में वो डांस एग्जीबिशन के साथ वो लोग खुद परफॉर्मेंस करने के लिए आए थे। ओके, कोई ऑडियंस आएगा तो परफॉर्मेंस भी देखेगा, फिल्म भी देखेगा, ड्राइंग भी देखेगा, पेंटिंग देखेगा, फोटोग्राफी देखेगा। अच्छा 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 अच्छा, गेट होल आइडिया अबाउट द अबाउट गोटिपो आर्टिस्ट, दिस वाज द आइडिया। दीस आर द ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफ्स we made that I talk about that the New Bridge archive. These are the photographs we collect, myself and Dr. Asif Vishal. We collect all the archive, these things. What is significant here, the bandha. Okay, you can see the traditional theme, like many of the themes are related to Krishna, and this is related to Mahishamardini. So these are different kind of yogic postures. You can see this is one of the yogic postures, and a number of yogic postures they made collectively certain forms, which is also some kind of acrobatic postures you can say. But this is what I find extremely evocative and very significant aspect of Gotipo is the confluence of aesthetic of the dance form, the yogic posture, as well as the acrobatic posture, and the kind of airs with which they can transform from one
domain to the other domain, and again they can come back to their own dance form. Because it's not that easy, it is actually the reflection of years of strenuous practice from the tender age of 4-5. Then it will be with that calm and compose, with that depth, you can really perform the yogic, the acrobatic, and the dance form with its very significant aesthetics. वाह. और Here ये are some color photographs. You can look. This is a village Raghurazpur. This is a village Raghurazpur, and these are the photographs of my show. The outside, you have seen the background, the painting, the performs, the inside of the gallery. I think this is the first time that Gotipa dancers are performed inside of the gallery. Because people who have seen the dance fund and people who have seen art also. Well, this is the exhibition in 2007, where this is the first time they perform in front of the different audience, non-Odia audience in Gujarat and different national audience. And this is the first time performed inside of the gallery. And this is the village of Raghurazpur, 3 photographs. And these are the color photographs we capture. ओ ये क्या है? व्हाट आर दीज? And another just this is the performance, how they become a हाँ, how they get ready. Boy to Actually, girls. yeah, the title is the proscenium stories. Okay, Gotipa dance. So actually, the proscenium is the space actually where they transform into the dancer. The boy transform into girls, not only through their attire, with their makeup, as well as in their psychological condition, to a Sakhi Bhava. That actually is the space inside where the transformation happen. And also that is a collective work. You can see always the seniors. Seniors actually help the juniors to, as a community, as a collective performance, they actually paint the other. And giving that also very small. Basically, you are saying they paint each other. And the senior also guide to a great extent. And also this is the site where actually they open up their small experience of the day, of their everyday life, and small their happiness, sorrows. And this is a space where actually they talk there about mundane life, as well as the space where they can be transformed into a dancer. और ये क्या है? What are these images? These are basically we heard about means photo painting in Orissa. Okay. And this is not photo. This is my contemporary expression. These are my drawing. I made 365 small drawings regarding the dance. All are the yogic postures. All are the different guru. All are the doing the Gotipa doing yoga. These are the drawings of the yoga, and I mix. But this is watercolor on paper. Yeah, these are the idea from a long time. How I capture all the means drawing and dance form through my painting. These are some of the drawings here I display. Only 32 small drawings are displayed here. But all the boys are doing yoga. These are the artworks. You can look in a different way, different composition like this. Generally, these are my mind when I study Santiniketan. I have seen that mural of Vinod Bihari. The Vinod Bihari using that all means earth color, like Ajanta Ellora, you have seen the earth color. Vinod Bihari using that mural in their painting. This is a particularly red vermilion hue. This red, this is Indian red. So these are inspiration from long time. How I use in my drawing. So vermilion hue. These are the drawings. So one set of the drawings. Thank you very much, sir. You gave very important time. You explained your entire art, your life, the struggle artists undergo, and thank you very much, ma'am. आपने हमें बताया कि आर्ट हिस्ट्री को कैसे देखना चाहिए, कैसे आर्ट उतना नहीं होता है. इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट अ फोटो और अ पेंटिंग और अ पिक्चर और अ परफॉर्मेंस, rather it has a history, it shows transformation. So thank you very much. हम सुन रहे थे बीरेंद्र पानी, आर्टिस्ट बीरेंद्र पानी, कंटेम्प्रेरी विजुअल आर्टिस्ट बीरेंद्र पानी सर को, और उनकी पत्नी डॉक्टर राजश्री बिस्वाल जो आर्ट हिस्टोरियन है, और मैडम भी आर्ट की दुनिया में काम करती हैं. दोनों लोग बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं. ये बहुत दुख की बात है कि भारत में कलाकारों को कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई भी प्रमोशन का रास्ता नहीं है. वट एवर दे डू ऑन देयर ओन, पुटिंग देयर एंटायर लाइफ एट रिस्क somehow to survive and struggle
and still keep the cultural head of the country high on the global pedestal. Thank you very much. आपने ये चैनल देखा सुना, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you sir.